Okay, Sunday school, you want to go? You have time? But let not all the teachers go. Okay. There are so many teachers, few children. Only 2 teachers to go. Rest of you, please stay back here. And please make a schedule so that one Sunday, 2 teachers will go. Next Sunday, another 2 teachers, like that. I don't want all the Sunday school teachers to be in Sunday school all Sundays because they need to learn what we hear in this church as well. Okay, Sunday school, you can go quickly, please. Only 2 Sunday school teachers will go today. संडे स्कूल के बच्चे अभी जा सकते Please हैं. make a schedule and send it to me. Quickly. थोड़ा जल्दी करेंगे बच्चे. चलिए. Okay, so the topic I have chosen for today is a very important topic, and that is that decay and decline is increasing overall. और आज का जो विषय लिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हम सभी के लिए कि अभी के जो समय है अभी यहाँ पे सड़ाहट और गिरावट बढ़ती जा रही है हर एक क्षेत्रों में. Girawat or whatever. Decay and decline is increasing overall. चारों तरफ जो सड़ाहट है गिरावट है बढ़ती जा रही है. So today we will explore. So yesterday 4-5 of us attended one session. I cannot tell you the name, but we attended one session in the evening, very interesting. So we have purchased the package to go for another learning for 8.5 hours as a group, few people from our church, so that we can use some of the, AI tools to better presentation and also translation, also, voice and videos and text presentation, photography, everything to improve further. So it was very interesting, and so we will, in the days to come, use that both for our Bible study as well as Sunday sermon, as well as daily devotion. इसी कारण कल शाम का ऐसा हुआ कि कलीसिया के 4-5 लोग एक विशेष क्लास उन्होंने उसमें वो जुड़े थे ताकि कलीसिया में जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे अच्छे से प्रेजेंटेशन हो, ट्रांसलेशन हो या जो भी कार्य कलीसिया के द्वारा की जाती है, लोगों तक पहुंचने की जो बातें हैं, उन सब के लिए कैसे हम एआई टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके लिए हमने पैकेज भी लिया है ताकि हम सभी लोग मिलकर ठीक से सीखने पाएँ, ताकि हम कलीसिया के जो कार्य है प्रभु के वचनों को और भी तेजी से फैलाने पाएँ. So we see, signs of decay and decline in the society. हम अपने समाज में सड़ाहट और गिरावट को देखते हैं बढ़ते हुए. So today's message will explore the signs of decay and decline in our societies. So आज के विषय में आज जब हम इस बात में अध्ययन करते हैं, हम देखेंगे कौन कौन से चिन्ह हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि समाज में गिरावट और सड़ाहट आज होते जा रही है. So we will learn from the Bible, we will draw out the scriptures, and we will highlight the challenges, and also we will see the insight in navigating these decline and decay, and whether in terms of moral values or spiritual values or physical or mental or emotional. So we are seeing a decline. So how do we deal with it? What does Bible say about that? How we can tackle that? How we can navigate that so that we become overcomers, we become victorious? Because Bible gives us solution. Bible tells us how we can use that. We have been given the gift of the Holy Spirit. We have Holy Spirit with us. So we can use, various tools from the Bible, and including, the personality of the Holy Spirit and the power of His Word, and also use that to change and improve our lives.
तो इसके लिए हम वचन के द्वारा ही देखेंगे कि हमारे जीवनों में ये जो चिन्ह है वो क्या है, समाज में ये गिरावट के जो चिन्ह क्या हैं, उन्हें वचन के द्वारा हम जानेंगे, हम उनकी चुनौतियों को जानेंगे, कैसे हम उनका सामना कर सकते हैं, कैसे उनसे बच के निकल सकते हैं, ताकि समाज में जो है हमारे जो नैतिक मूल्यों के गिरावट है, आत्मिक जीवन की जो बातें हैं, हमारे शारीरिक तौर पे है, ऐसी जो हर एक जो बातें हैं, हम इन बातों को देखेंगे कि हम कैसे मसीही लोग उन बातों से बच सकते हैं। पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का जो व्यक्तित्व है, वचन के द्वारा कैसे हम हर एक इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। So we will examine, how evil is increasing in this world. We will also see how there is decrease in virtue, as well as we will see the loss of moral standards. And so we will emphasize from the Bible what Bible talks about, how it emphasizes righteousness. We need the righteousness of Jesus Christ. We also then, once we get that righteousness and we get the Holy Spirit, then we need to live out that righteousness in our daily life. इसी कारण हम इस बात को देखेंगे कि हमारे समाज में कैसे दुष्टता और बुराई बढ़ती जा रही है, और जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण की जो बातें हैं, वो कैसे कम होती जा रही हैं। तो हम जो मसीही लोग हैं, कैसे हम इन समयों में अपने आप को मजबूत रखें। हम मसीह में जब मसीह ने हमको धर्मी ठहराया है, अपना पवित्र आत्मा हमको जब दिया है, तो जो उस धार्मिकता जब हमने प्राप्त की है, उसके अनुसार से अपना पूरा जीवन भी वैसे जीने पाए, ताकि समाज में हम असर डालने पाए। इन बातों का हम अध्ययन करेंगे। So if you look around, you will see that decay is increasing, overall decline. Everything, all the good things are declining and bad things are all increasing. यदि आप चारों तरफ देखेंगे तो इस समाज में आप देखेंगे कि जितनी सड़ाहट है, जितनी गिरावट की बातें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अच्छे गुण और भलाई की जो बातें हैं, वो सब कम होती जा रही हैं। Last time we talked about faithful witness. So we will relate, last Sunday's message with today's thing, and we will see that, because Jesus has made us light in this world, you and I, we have a foundation job of sharing, being a witness in this world. So we have to use whatever He has granted us and be an effective witness in this world, and not get ashamed, or we don't put ourselves behind somewhere or hide ourselves, but we expose ourselves to this world by being a good witness, by being a faithful witness, by being such a witness that people can depend on us, that being such a witness where, people will see that our commitment is unwavering and that we all stand for the truth. हमने पिछले सप्ताह देखा था कि हमको विश्वास योग्य गवाह बनना है। उसी शीर्षक को इसके आगे बढ़ते हुए, उसी के साथ जोड़ते हुए हम इस बात को देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना विश्वास योग्य गवाह बनाया है, हमको अपनी बातें, जो अच्छी बातें, हर एक बातें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, तो हमारा मौलिक जो कार्य यही था कि हमको उनके गवाह बनना है। हमको, जैसा हमने देखा कि हम जगत की ज्योति हैं, तो ज्योति को छिपा के नहीं रखना है, पीछे नहीं हटना है, हमको शर्मिंदा नहीं होना है प्रभु के वचन से, सुसमाचार से, हमको बल्कि आगे आकर जो प्रभु की ज्योति है लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम एक असरदार और अच्छे और सच्चे उनके गवाह बनने पाए, ताकि लोग हम पे भरोसा कर सके। वो हमारे अडिग जो समर्पण को, प्रतिबद्धता को देखकर वो लोग भी प्रभावित होने पाए। ऐसे हमको व्यक्ति बनना है। So I want to ask you a question. If you are seeing, look at me please, don't look here and there. If you see decay increasing all around you, what are you going to do with it? What will you do? Yes, please. तो आपसे यही सवाल है, यदि आपने चारों तरफ देख रहे हैं, सड़ाहट है, गिरावट है, सारी चीजें हो रही हैं, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप क्या करेंगे? Last Sunday we heard about being witness. So I want to ask you, from last Sunday till like today morning, how much effective witness you did in these last 5-6 days? Did you do or not do it? I want to ask you, every time you hear the word of God, listen to me. Every time you hear the word of God, what do you do with it? Do you simply write amen? Or say amen? And then forget everything about it, and then just you continue your routine life?
what do you do when you hear the word of God? Every time, do you do nothing? Or do you do something about it? Jesus saved you for something. Your spirit will live forever. Your body will die, but He will give you a new body. But your spirit is eternal. It will never die. So what will you do when you receive the word of God, which is a spiritual thing? Word of God is spiritual. What will you do with the word you hear? Do you do nothing? Or you will do something? Yes, please. तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पिछले सप्ताह हमने सुना था विश्वासों के गवाह बनने के बारे में। यदि आज आपसे सवाल पूछा जाए पिछले सप्ताह वचन सुनने के बाद आज की सुबह तक आप कैसे विश्वासों के गवाह बने? क्या आपने परमेश्वर का वचन जब आपके पास आया तो क्या आपने उसके ऊपर कुछ कार्य किया या कुछ भी नहीं किया? वैसे ही प्रभु का वचन प्रतिदिन आपके पास आता है। आप कई लोग उस पर आमीन लिखते हैं, कुछ लोग आमीन बोलते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? क्या आप उसके लिए कुछ करते हैं या कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं? या आपसे ये सवाल पूछा जाता है, ये बात आपको सबको जानने की आवश्यकता है कि हम सबों की जो आत्मा है वो अनंत काल के लिए है, क्योंकि प्रभु हमको, हमारी देह तो मृत हो जाएगी, लेकिन प्रभु हमको एक नई देह देंगे, हमारी आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। तो ये जो वचन भी है ये अनंत काल के लिए है। तो आपसे यही सवाल है कि क्या जो वचन आपके पास आता है आप उसका क्या करते हैं? So do something about the word of God. Do something. Do something about the teachings you hear. Don't just sit back or go back home and say someone else will do it. Why should I do it? Don't do that. You have to give an account. Your spirit has to give an account. What will you do then? Will you say, I didn't know? I showed you Proverbs 24 last time. What does it say? If you say, I didn't know, God will say, no, you knew, but you ignored. You let go. You were indifferent. Many times you receive message, people are so indifferent. Yesterday I sent one message in the evening about how bad, these notes are. Only 1 or 2 responded. I was shocked. Nobody even felt any remorse. Sorry to hear this, Pastor. You may have done it sometime, Instead of saying, I may be part of it sometimes, please forgive me, I will be careful next. Not even a word. Just sit, relax, and don't even think about it. That's called decay of your value system. Your values are decaying. It is decreasing. It is not offending you anymore. So the world is decaying. The question is, what are you? इधर देखो भाई, हेलो, मैं तुमसे पूछने वाला हूं आज. मैं पहले बता रहा हूं, इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्विज लेने वाला हूं आज. मत देखो क्योंकि आप उधर देख रहे हो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है. मेरी तरफ देखो भाई. बच्चा है, वो खेलने दो, बच्चा है भाई. Let him do anything. You listen to this message. It is for us, each one of us. Unless, of course, he touches that, then you be careful. So the world is decaying. The values are decaying. What will you do? That's the question I want to ask you today. Yes, please.
इसी कारण जब वचन हमारे पास पहुंचा, हमको कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। जब वचन हमारे पास आता है, जब शिक्षाएं हमको मिलती है, हमको उस पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया, आपकी आत्मा अनंत काल के लिए जीवित रहेगी। आपको प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपको लेखा देना पड़ेगा कि उन वचनों का जब आपके पास पहुंचे आपने क्या किया। एक उदाहरण, कल पास्टर जी ने एक मैसेज भेजा कि जो नोट जो फटे हुए थे वो मिले हैं, तो वहाँ पे लोगों ने उसका प्रत्युत्तर ही नहीं दिया। कई बार ऐसे ही होता है, प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। कम से कम ये तो कह सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, ये बहुत दुख हुआ ये बात जानकर। कई बार हमने भी किया, हम अगली बार से सावधान रहेंगे। एक प्रकार का वैसे हमारे अंदर ये चीज़ भावना होनी चाहिए कि जब प्रभु का जब अनादर हो, हमको भी चोट लगनी चाहिए। वचन के प्रति भी उदासीन रहने की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको उदासीन नहीं रहना है। इस कारण जब भी वचन आए, तो जब ये सब बातें हैं, ये भी इस बात को दर्शाता है कि हमारे जो नैतिकता है या आत्मिक जीवन में जो मूल्यों की बातें, गुणों की बातें हैं, उसमें गिरावट हो रहा है। जब गिरावट हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए। So the point is, what my request is as believers, we should not become part of the decay. That's the issue we have to tackle. Let us not become part of that decay which is happening all over. In this world, if you look into this world, you will see that everything is going from bad to worse. Yes, please. तो आज का विषय का उद्देश्य भी यही है, जहाँ पे गिरावट और सड़ाहट हम देख रहे हैं संसार में, एक विश्वासी होने के नाते हमको उसका भाग नहीं बनना, हमको उसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। So everything is going from bad to worse. हर एक बातें बुरे से बदतर होती जा रही हैं। Decency has fallen. यहाँ पे लोगों का आदर गिरता जा रहा है, Righteousness has fallen. धार्मिकता गिरती जा रही है, Respect has fallen. लोगों का आदर करना गिरता जा रहा है, Commitment has fallen. लोगों की प्रतिबद्धता गिरते जा रही है, Faithfulness has fallen. लोगों की विश्वासयोग्यता गिरती जा रही है, Loyalty has fallen. वफादारी गिरती जा रही है, Giving has fallen. Giving has fallen. देने में लोग कम होते जा रहे हैं, Love has fallen. प्रेम में कमी होती जा रही है, Faith has fallen. विश्वास की कमी होती जा रही है, Trust has fallen. भरोसे की कमी होती जा रही है, Integrity has fallen. लोगों में जो खराईपन है उसकी कमी होती जा रही है, Compassion has fallen. लोगों में तरस दया की कमी होती जा रही है, Honesty has fallen. ईमानदारी की कमी होती जा रही है, Empathy has fallen. समानुभूति की कमी होती जा रही है, Courage has fallen. जो साहस है उसकी कमी होती जा रही है, Patience has fallen. धीरज की कमी होती जा रही है, Tolerance has fallen. लोगों को सहनशीलता की कमी होती जा रही है, Morality has fallen. नैतिकता की कमी होती जा रही है, Dignity has fallen. लोगों का सम्मान की कमी होती जा रही है, Humility has fallen. लोगों की दीनता की कमी होती जा रही है, Ethics has fallen. हर एक जो सही तरीके से काम करने का तरीका वो भी गिरता जा रहा है, Justice has fallen. न्याय गिरता जा रहा है, Understanding has fallen. समझ की कमी होती जा रही है, Civility has fallen. लोगों में जो व्यवस्थित तौर पे रहने की बात वो गिरती जा रही है, Gratitude has fallen. Gratitude, brother. Gratitude. धन्यवादी हृदय की कमी होती जा रही है, आभारी होना। आजकल लोग आभारी ही नहीं है, आभार गिर रहा है, आदर गिर रहा, ऑनर हैज फॉलन, ट्रांसपेरेंसी हैज फॉलन, ऑथेंटिसिटी हैज फॉलन। नकली चीजें बहुत मिल रही हैं, असली चीजों की कमी होती जा रही है। हर चीज में तो मिलावट है। हार्मनी हैज फॉलन, एकता जो है वो गिर रही है। पूरी दुनिया में देख लीजिए, harmony is falling, unity has fallen, sanity has fallen, being sober has fallen, prudence has fallen, diligence has fallen. Diligence means मेहनती. Prudence means थोड़ा सोच समझ कर. Sincerity has fallen. कहां सिंसियर मिलते हैं लोग आजकल? बाइबल में लिखा है, सारे कहते हैं मैं सिंसियर हूं भाई, सारे बोलते हैं हम सिंसियर हैं। जैसे बोलते हैं ना हम पवित्र हैं, सारे बोलेंगे हम पवित्र हैं। और मैं आपसे, वो सारे पवित्र हैं? हाँ जी सारे पवित्र हैं। लेकिन खुदा जानता वाकई में हम हैं कि नहीं है। प्योरिटी हैज फॉलन, पवित्रता गिर गई है। कितनी पवित्रता गिर गई है। प्रेज द लॉर्ड। अमन पीछे जाके, यार पता नहीं अमन अपने आप को क्या समझता है। माय गॉड, एक्सीलेंस हैज फॉलन। एक्सीलेंस, उत्तमता गिर रही है। मीडियोक्रिटी इज इंक्रीजिंग। मीडियोकर, एवरेज, लोग आजकल एवरेज हो गए।
जितना करना उतना ही करेंगे। पढ़ाई में एवरेज, काम में एवरेज, दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। हेल्थ हैज फॉलन, हॉस्पिटल्स में भीड़ देखिए। लॉयल्टी हैज फॉलन, वफादार लोग कहां मिलते हैं। हार्ड वर्क हैज फॉलन, मेहनत करना भी गिर गई है आजकल। लोग मेहनती नहीं है। एक दिन मेहनत कर लेंगे, भाई मैंने तो आज बहुत काम कर लिया। औरतों को देखिए कितना मेहनत करती है भाई। औरतों जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता, आदमी नहीं कर सकता। चाहे जो मर्जी जिंदगी में लोग बोलते रहे, नहीं कर सकता औरत जितना मेहनत। कैपेसिटी ही नहीं है। एक बच्चे जितना कोई चीज लेके पेट में बांध के ना 9 महीने रख के, बाहर से ही ऐसे देख लो, 2-3 दिन के बाद ही परेशान हो जाओगे। खासकर बेड में जब लेटोगे, थके हुए होगे, करवट नहीं ले पाओगे। ये सारी चीजें गिरते जा रही हैं, नेगेटिव चीजें इंक्रीज हो रही हैं। प्रिटेंस हैज इंक्रीज्ड, दिखावा कितना बढ़ रहा है। माफ कीजिएगा बोलने के लिए, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन यहां पे ना मतलब ऊपर की तरफ समझ गए होंगे, जो इधर ऊपर की तरफ रहते हैं ना, बहुत दिखावा है। बैंक में लेकिन भाई कपड़े ऐसे पहनेंगे जैसे लखपति आदमी है। दिखावा बहुत है, कपड़ों का दिखावा तो बहुत ही ज्यादा है। प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड, इनकम हैज डिक्रीज्ड। महंगाई बढ़ गई है, आमदनी कम हो गई है। डबलनेस हैज इंक्रीज्ड, दोहरापन। स्लैंडर हैज इंक्रीज्ड, विश्वासियों में तो बहुत ज्यादा है भाई। पीठ पीछे I challenge you, you please ask yourself today, how much slander you do every day? पीछे से बोलना। हिम्मत रखो और सामने आकर बोलो। सामने बोल दो, मुंह पर बोलो, पीछे मत घुमाओ। Gossip has increased, चुगलियां बढ़ गई हैं। Dishonesty has increased। एक कीबोर्ड हमारा गायब हो गया, पूछ रहे हैं कहां कौन ले गया पता नहीं। एक कैमरा हमारा बहुत साल पहले गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं है। कोई सामान टूट जाए, ये किसने तोड़ा है पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हैज इंक्रीज। वातावरण देख लीजिए, हर तरफ से खराब चल रहा है। इनइक्वालिटी हैज मैसिवली इंक्रीज्ड, असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अन्याय बढ़ गया, इनजस्टिसेस हैज इंक्रीज्ड, करप्शन हैज गॉन ओवर द हेड, भ्रष्टाचार तो सिर से ऊपर गुजर रहा है, पोलराइजेशन हैज इंक्रीज्ड, है तुष्टि, आई डोंट नो, maybe political if I say polarization। एक समाज इधर आ गया, एक समाज इधर आ गया, हम ये हो गए, आप ये हो गए, इस तरह का पोलराइजेशन। साइबर क्राइम हैज इंक्रीज्ड। मेरे एक दिन क्रेडिट कार्ड से शाम को मैं ब्रदर फ्रांसिस से फोन आया था, हाँ फोन आया और जैसे ही रखा मेरे फोन में 96,000 रुपीज का डेबिट आ गया क्रेडिट कार्ड में। और मैंने उस दिन ये बाइबल मंगाई थी बाहर से, इंटरनेशनल से, 96,000 समथिंग का आया बिल। मैंने कहा, और बिल आया क्या है, मैंने नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में एक होटल में चेक इन करके बिल दिया है। साइबर क्राइम, तुरंत मैंने फ़ोन किया 1930 पे, साइबर क्राइम में रजिस्टर करो वगैरह। साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है। एडिक्शंस हैज इंक्रीज्ड ऑफ वेरियस काइंड,
विभिन्न प्रकार की लतें लग गई हैं लोगों को। कितनी लतें लग गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव इंक्रीज, ओवर कंजम्पशन हैज इंक्रीज, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं। फेक न्यूज हैज इंक्रीज, सोशल आइसोलेशन हैज इंक्रीज, राइट? फेक न्यूज कितना बढ़ गया है, लोग अलग थलग हो गए हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैज इंक्रीज, पक्षपात बढ़ गया है। बुलिंग हैज इंक्रीज, डराना धमकाना बढ़ गया है। स्पीशीज एक्सटिंक्शन हैज इंक्रीज, कितने तरह की चिड़ियां होती थी, याद है वो छोटी चिड़ियां ची 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 सुबह करती थी, कहां दिखती हैं वो? क्राइम हैज इंक्रीज्ड, abortions have increased, abortions करा लेते हैं। killings have increased, marriages are failing, divorces have increased, death has increased, कितनी जल्दी जल्दी मृत्यु आ जा रही है। poverty has increased, लोग जल्दी ज्यादा निर्धन हो रहे हैं। darkness has increased, अंधकार बढ़ रहा है। Satan's work has increased, शैतान का काम बढ़ गया है। Deception has increased, धोखा बढ़ गया है। Disappointments have increased, निराशाएं बढ़ गई हैं। Despair and depression has increased, बिल्कुल हताश हो गए हैं। मानसिक तनाव बढ़ गया है। और इस तरह से लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। But what is the tragedy of all these things? इन सब में सबसे ज़्यादा दुखद बात क्या है, You know? क्या आप जानते हैं? You know what is the tragedy? बताइए, थोड़ा सोचिए। आप क्या सोचते हैं? एक पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं लेना है, लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही हैं हमारे चारों ओर, लेकिन how should I put this question? So you got the list, so many things are going on. What is the biggest tragedy of all these things happening? सबसे बड़े दुखद की घटना, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये क्या है बताइए? नहीं, पर्टिकुलर नहीं बताना। ये सारी चीजें हो रही हैं, हम थोड़ी बोल सकते ये ज्यादा है, ये कम है। ये सारी चीजें हो रही हैं, हम इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा खराब है, ये कम खराब है। पाप तो पाप है ना, हम ये नहीं बोल रहे ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है। पाप तो पाप है, लेकिन इसमें सबसे दुखद बात क्या है? What's the tragedy? हाँ बोलो हैं? They are not increasing in their faith or doing their responsibilities. नहीं, the biggest tragedy is, मैंने आपके किसी के चेहरे में शॉक नहीं देखा अभी तक। That's the biggest tragedy. यानी कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी के चेहरे पे मैंने कोई चिंता हो इस विषय में, वो नहीं देख पाया हूं। इतनी सारी चीजें बता दी। That's the greatest tragedy. जैसे कल मैंने वो मेल, मैंने इसको, आपको पता है ये मेल मुझे, ये बात जो है कल जो वो नोट के बारे में भेजा था, 3-4 हफ्ते पहले भेजा था, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने सोचता रहा भेजूं ना भेजूं, भेजूं ना भेजूं, भेजूं ना भेजूं। फिर मैसेज बनाने के बाद भी फिर मैंने 6-7 दिन उस पर बैठे रहा। फिर जब मैं ये मैसेज बना रहा था ना, मुझे लगा यार मुझे उन्होंने पहले बता दिया और मैं चुपचाप बैठा हूँ, इस पर कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ये भी तो सोच रहे होंगे यार पास्टर को कुछ बोल ही नहीं रहे। जैसे आपने कल एक सिस्टर सुजाता ने रिप्लाई किया, बस दिस इज डिसऑनरिंग लॉर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया। कैन यू इमेजिन? क्योंकि पीपल आर नॉट शॉक्ड, दे आर नॉट सरप्राइज्ड बाय इविल थिंग्स एनी मोर, दे आर नॉट सरप्राइज्ड। उनको आश्चर्य हो ही नहीं रहा है।
कोई नई बात थोड़ी, ये तो पता है, समझ गए, ये तो पता है, चुगली हो रही है तो पता है, गलत काम हो रहा है ये तो पता है, ठीक है, ये चीजें बढ़ रही, करप्शन बढ़ रहा, हाँ ठीक है पता है, क्या कर सकते हैं. We have become indifferent to all these things completely. Completely. We have become indifferent to all these things completely. इन सारी बातों में हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हमारा रवैया हो गया है. What was horrible yesterday is acceptable today and is a stepping stone for something even worse. जो बात एक बड़ी बुराई के रूप में कल देखी जाती थी, आज एक सीढ़ी के समान बन गई है कि उससे भी बुरा काम करने का अवसर बन गया है. कल ये चीजें बुरी थी, लेकिन आज नहीं, लग ही नहीं रहा है. अरे भाई, अगर लगेगा नहीं तो ये और बड़े बड़े गलत काम कराएगा. So the first point is पहला बिंदु general decay and decline. कि जो आमतौर पे जो दिखने में आता है गिरावट और सड़ाहट. Can you put it on the screen? आइए हम स्क्रीन That से point. सोचें. General decay and decline. चारों तरफ सड़ाहट और गिरावट. Let's read that verse. आइए इस वचन को पढ़ेंगे. General decline. General decay and decline. No, not this one. That verse you show, verse. This is too small. When we make presentation, na, so we'll make it bada bada, और एक point का फिर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है? Let's read this together. So this is only first point. General decay and decline. First point. 5 points हैं. So आज पहला point देख लेते हैं. Time कितना रह गया? Okay, ज़्यादा time नहीं है. आइए इसको देखते हैं. But let's read together. But understand this, that in the last days will come set in perilous times of great stress and trouble, hard to deal with and hard to bear. Yes, please. पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे. नहीं, ऐसे भाई, समय आप आएंगे. वहां से आप बताओ, वहां से पढ़ो. इंग्लिश वाला थोड़ा समराइज करके बता दो. सो इस बात को समझिए कि अंतिम दिनों में ऐसे समय आएंगे या हो जाएंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तनाव रहेगा, कठिनाइयाँ होंगी, जिसको समझना और जिसका सामना करना, उसको सहना बहुत कठिन होगा. Perilous means dangerous time, risky time, मुश्किलों का समय. Verse 2, let's read it. Verse 2, let's read together. For people will be lovers of self and utterly self-centered, lovers of money, and aroused by an inordinate, greedy desire for wealth, proud and arrogant, and contemptuous, boasters. They will be abusive, blasphemous, scoffing, disobedient to parents, ungrateful, unholy, and profane. क्योंकि लोग जो होंगे अपने आप को ही सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाले होंगे, आत्म केंद्रित होंगे, पैसों से प्रेम करने वाले होंगे, और जो उसके अंदर धन कमाने की जो इच्छा है, लालसा है, उससे वो उसी के द्वारा चलाए जाएंगे. बहुत ज़्यादा घमंडी होंगे, अहंकारी होंगे, और लोगों को अपना घमंड प्रकट करने होंगे, लोगों को चोट पहुंचे जिससे वैसा, और ये झूठे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले होंगे, गाली देने वाले होंगे, मजाक करने वाले होंगे, माता पिता की अनाज्ञाकारी होंगे, धन्यवाद नहीं बोलने वाले होंगे, धन्यवादी नहीं होंगे, अपवित्र होंगे और कृतज्ञ होंगे. Contemptuous here means lack of respect. जैसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बोलते हैं ना, यानी कि लोगों को कोर्ट का जो है रेस्पेक्ट नहीं है. सो दैट्स द वर्ड contemptuous, boasters. नेक्स्ट वर्स 3 को देखते हैं, उसमें क्या लिखा है. वर्स 3, लेट्स रीड. They will be without natural, that is human affection, callous and inhuman, relentless, admitting of no truce or appeasement. They will be slanderers, false accusers, troublemakers. आपको पता ना, ट्रबल मेकर्स बड़े होते हैं, फालतू का ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं. सो इट इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर विल बी मेनी इन द एंड डेज ट्रबल मेकर्स. Intemperate and loose in morals and conduct, uncontrolled and fierce,
haters haters of of good. God. Yes, please. और यहाँ पे ये जो लोग होंगे इनके अंदर मनुष्य के अंदर जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं होगा, अमानवीय होंगे, ये बिल्कुल भी मानेंगे नहीं, शांति समझौता करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये पीठ पीछे बात करने वाले होंगे, झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले होंगे, समस्याओं को खड़ा करने वाले होंगे, इनके जो नैतिकता है, इनका जो चाल चलन है वो सही नहीं होगा, ये बहुत ही अनियंत्रित होंगे, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होंगे और जो जितनी भी भलाई की बातें हैं उससे वो बैर करने वाले होंगे. Next verse 4. They will be treacherous, which means betrayers, rash, and inflated with self-conceit. Self-conceit का मतलब है undue pride. मान लीजिए मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा आ गया तो बस मैं फन्ने काम बन गया, किसी को नहीं समझता हूँ, कोई मुझे बता भी रहा मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ. दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंसीट. या बहुत इंटेलिजेंट है, आपका रैंक बहुत हाई है तो आपको अनड्यू प्राइड हो गया अपने ऊपर. सो दैट इज व्हाट इज सेल्फ कंसीट. देन इट सेज दे विल बी लवर्स ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, यानी कि आंखों को जो अच्छा लगे, कानों को जो अच्छा लगे, जो भी चीज़ें मेरे फ्लैश को अच्छा लगे, ये सारी चीज़ें करते हैं. एंड वेन अम्यूजमेंट्स मोर देन एंड रादर देन lovers of God. Yes, please. सो ये लोग जो होंगे धोखा देने वाले होंगे, ये लोग बुरे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले होंगे, अपने आप में ही फूले हुए होंगे और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने वाले होंगे, घमंड से भरे होंगे, जो जितने जो ज्ञानेंद्रियों में जो उनको आनंद मिलता है उसी का आनंद लेने वाले होंगे और अपने आप को सुख विलास में रखना चाहेंगे बजाय इसके कि वो परमेश्वर से प्रेम रखें. Next, last verse 5. For although they hold a form of piety. पाइटी मीन्स देखने में बड़े अच्छे लगेंगे, लगेगा यार ये तो बड़े पवित्र लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट. दे होल्ड अ फॉर्म ऑफ पाइटी. भाषा ऐसी बोलेंगे, वर्ड्स ऐसे बोलेंगे, लगेगा भाई ये तो बहुत स्पिरिचुअल है, बट दे डिनाई एंड रिजेक्ट एंड आर स्ट्रेंजर्स टू द पावर्स ऑफ इट. बाय देयर कंडक्ट belies the genuineness of their profession. Genuineness of their, it belies. यहीं पे उनको जो यीशु मसीह ने मत्ती 23 में पूरा अध्याय ही इस पर लिखा था, अध्याय ही इसी चीज़ पर लिखा था कि कैसे लोग प्रिटेंस करते हैं, नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, वो दिखाने के लिए इस प्रकार से करते हैं. लेकिन जब आप उनकी पूरी ज़िंदगी पलट के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन जो भी कह रहे हैं उससे एग्जैक्टली उल्टा जी रहे हैं. अवॉइड ऑल सच पीपल, टर्न अवे फ्रॉम देम लिखा है. कितनी बार हमने सुना यार, जो चुगली करता उसके साथ दोबारा जाना नहीं है, चाहे जो हो जाए, बंदा नाराज़ हो जाने दो. मैंने बोला था खुदा को नाराज़ नहीं करना हमने, बिकॉज गॉड हेट्स स्लैंडरर्स. क्योंकि मैंने आपको बाइबल स्टडी में रेवलेशन की किताब में बताया था 4 नाम है शैतान के. एक नाम उसमें दोष लगाने वाला है, चुगली करने वाला, स्लैंडरर, जो यीशु मसीह के सामने जाकर बोले अरे ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था, ये तो ऐसे था. अगर हम चुगली कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं किसी के बारे, भाई हम शैतान का काम कर रहे हैं. और बिलीवर्स में तो बहुत ज़्यादा तरीका अच्छा. एक प्रेयर रिक्वेस्ट बतानी है आपको, प्रेयर रिक्वेस्ट के बहाने सारी उल्टी कर देंगे. इसलिए आजकल प्रेयर रिक्वेस्ट आती ही नहीं. सो यहां पे जितनी चीजें लिखी हैं, these things they highlight behaviors and attitudes that can lead to moral and spiritual decline. करें सारी बातें जिनको हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, ये इसी बात को दर्शाते हैं कि हमारे जीवन में नैतिकता की और जो सदाचार की जो बातें, आत्मिक जो जीवन की बातें हैं, वो गिरावट नजर आ जाएंगी. So we have to avoid some pitfalls. तो यहाँ पे इन बातों में किन गड्ढों से हम बच सकते हैं? So we have to do it every day. These things we have to do it every day. और इन बातों को हमको प्रतिदिन करने की आवश्यकता Don't है. need to write. I will send you notes. This notes I'll give you as it is, so that you can reread it, because it's for our daily use. So I'll
not give you a summary, I'll give you entire notes. So you don't need to write it. Just listen to it. So we have to do few things. Number one, awareness of self-centeredness. इसी कारण हमको जो बातें करनी है वो है सबसे पहले कि क्या मैं अपने आप में ही अपने तरफ केंद्रित तो नहीं हूँ, इस बात को जांचने की आवश्यकता है। मतलब ये देखिए आपके रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं आप अपने ही बारे तो सिर्फ नहीं सोच रहे हैं. फॉर दिस यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डेंजर्स ऑफ एक्सेसिव सेल्फ लव एंड ऑल्सो मटेरियलिज्म. तो क्योंकि यदि आप इस बात को करेंगे कि क्या सिर्फ मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि फिर आप जो अपने आप को ही ज़्यादा फिर बड़ा बनाने के लिए या फिर जो चीज़ें या संसार की बातों को अपने अंदर लाने की आप फिर कोशिश नहीं करेंगे. देखिए मेरे अंदर क्या कमी है मुझे पता है, मुझे उसका अवेयरनेस है, लेकिन मुझे उसको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद को ही करना पड़ेगा. हमारे लिए इसलिए पवित्र आत्मा दिया. दैट्स व्हाई होली स्पिरिट हैज बीन गिवन. वी हैव टू यूज द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट टू कम आउट ऑफ अ सेल्फ सेंटर्डनेस. सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, अवॉइड नेगेटिव ट्रेट्स इन योर लाइफ. व्हाट आर दोज नेगेटिव ट्रेट्स? लाइक प्राइड इज देयर, एरोगेंस इज देयर, लैक ऑफ रेस्पेक्ट इज देयर, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल लीड यू टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर. सपोज कीजिए आप मुझे कोई प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं आपको जवाब ही नहीं देता हूं, आपको कैसा लगेगा? बताइए ना. आप मुझे बोलेंगे पास्टर बहुत अर्जेंट है, 1 मिनट जल्दी से आप मुझे फोन करो या जल्दी से इसका मैसेज का रिप्लाई करो, मैं करता ही नहीं आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा. आप बोलेंगे पास्टर फोन नहीं उठा रहे हैं, पास्टर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज योर सेल्फ रेस्पेक्ट इज डिस्टर्ब्ड. Similarly, when I send you message and you are not replying, it means you have lack of respect. आपके अंदर सामने वाले के लिए इज्जत नहीं है. अगर इज्जत नहीं है तो फिर मैं क्यों इज्जत करूं? As simple as that. What you sow, you reap. So you have to practice avoiding these things. Once I thought यार जब जवाब ही नहीं देते तो छोड़ो ना, क्यों बनाऊं यार सुबह उठ के मैसेज या रात में, छोड़ो. मैंने 2-4 बार बंद करके भी देख लिया, फिर लेकिन मन नहीं मानता यार, छोड़ो ना, नहीं भी करते हैं फिर भी भेज दो यार, चलो. यू नो यू आर कंट्रोलिंग योर प्राइड, यू आर कंट्रोलिंग, क्योंकि प्राइड है ना. भाई जवाब नहीं दिया, आपने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपके पास सामने वाले के लिए रेस्पेक्ट नहीं है. रेस्पेक्ट होता तो आप देते. आपके पास खुदा का वचन आ रहा है, खुदा के वचन के लिए रेस्पेक्ट नहीं है तो इंसान के लिए क्या होगा? जबकि खुदा ने बोला पहले तो इंसान की रेस्पेक्ट कर फिर मेरी रेस्पेक्ट करना. पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, 1 जॉन जो एपिसल्स है ना, उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम इंसान से ही प्रेम करना नहीं जानते तो तुम मुझसे क्या प्रेम करोगे? यानी कि अगर आप इंसान का ही रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते तो बड़ी बड़ी बातें बोल के खुदा से हम ओ लॉर्ड आई लव यू दिस एंड दैट, कोई फायदा नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, मैंने कितनी बार, आप बड़ा बड़ा घर में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम यह है हमारे यहां है ही नहीं है, या है तो बहुत कम है. यू हैव टू कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड. अपने आप नहीं आएगा, क्योंकि इंसान नेचर से ही स्वार्थी है. वो धन्यवाद थैंक यू बोलना नहीं चाहेगा, है नहीं आभार. जब यीशु मसीह ने जान दे दी अपनी, जब उसके लिए आभार नहीं है इतना, तो कोई इंसान के लिए क्या रखेगा? लेकिन हमें आभार जो है डेवलप करना, प्रैक्टिस करना. आपको मैं 10 मैसेज भेजूं, आप 10 बार रिप्लाई कीजिए, तब दिखाता है कि आप आभारी हैं किसी का, आप रेस्पेक्ट करते हैं, आप इग्नोर नहीं, आपको इंडिफरेंट नहीं है. अच्छा क्या है, मैं तो नोट गलत थोड़ी देता हूं, कोई देता होगा, हमको क्या फर्क पड़ता है? यानी कि ट्रेजेडी हो रही है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. कोई मर रहा है, जी रहा, फर्क ही नहीं पड़ रहा. भाई यही तो ट्रेजेडी है. ट्रेजेडी ये नहीं कि इतनी सारी चीजें नीचे जा रही हैं, इतनी सारी नीचे जा रही हैं. ट्रेजेडी ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट. I want to read one verse. Can you put on the screen
just put amplified. Acts chapter 2 verse 46-47. मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. ग्रैटिट्यूड क्या करेगा? अगर आप आभारी हैं, थैंकफुल हैं और धन्यवाद करते रहते हैं, खुदा की प्रशंसा करते रहते हैं, एक काम होगा. 46. अरे भाई 46 बोला, जल्दी से करो थोड़ा. इसको भी पढ़ सकते थे लेकिन अभी टाइम नहीं है. सो यहाँ पे लिखा है, डे आफ्टर डे दे मेट इन द टेम्पल एरिया, continuing with one mind, breaking bread in various private homes. रोज चर्च जाते थे ये लोग. टेम्पल लिखा है, रोज. मैंने इस थर्सडे को बाइबल स्टडी में बोला भी था, मेरी तो इच्छा है कि हम रोज बाइबल स्टडी कर लें. एक बंदे ने नहीं लिखा, पास्टर हाँ करो, मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ. एक बंदे ने नहीं लिखा. मैंने सोचा खुदा कैसे लोगों, समथिंग लाइक आई फेल्ट लाइक मोसेस भी परेशान हो गया. उसके पास तो, हमारे पास तो 200-250 लोग हैं, उसके पास तो 6 कितने लाख लोग थे भाई. वो कितना परेशान होता होगा. हर दिन मिलते थे, हर दिन जाते थे. दे वर ईटिंग मील्स टुगेदर विद जॉय एंड जनरस हार्ट. ठीक है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, प्रतिदिन लिखा है, इकट्ठे होते थे प्रतिदिन, एवरी डे. अब देखिए एक काम होता था वहां पे. वर्स 47, दे वर प्रेजिंग गॉड कंटिन्यूअली. आभार, खुदा के लिए आभार, लोगों के लिए आभार. तो क्या होता था? एंड हैविंग फेवर विद ऑल पीपल. क्योंकि वो खुदा के लिए इतने आभारी थे, इतने प्रशंसा करते थे, लोगों के लिए भी आभारी थे. बहुत लोगों का उनको फेवर मिला और लोगों के, खुदा ने क्या किया? एंड द लॉर्ड केप्ट एडिंग टू देयर नंबर डेली दोज हु वर बीइंग सेव्ड. हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी, हर दिन. क्योंकि ये लोग आभारी लोग थे, वे परमेश्वर की स्तुति करते थे, कंटिन्यूअसली आभार व्यक्त करते थे. अरे भाई आपको मैसेज भेज रहे हैं, ये खुदा का वचन मोती है लिखा. इसलिए लिखा था खुदा ने, मोतियों को सुअरों को नहीं देना चाहिए, ऐसे भी लिखा खुदा ने. क्योंकि सुअर तो मोती का मूल्य नहीं समझ पाएगा. God's word is precious. आभार रखो भाई, ग्रैटिट्यूड रखो, उसकी प्रशंसा करो. जब यहां फिर से लोग लेट आते हैं, नेक्स्ट संडे द डोर्स विल बी क्लोज. प्लीज रिमेंबर दैट. दोज हु आर आउटसाइड, दोज विल रिमेन आउटसाइड. नेक्स्ट संडे we will be closing the door. We will be starting our service by 9:15. We are changing time. Next Sunday से temperature 40 degree हो रहा है, तो इसलिए we will be changing our time. 9:15 we will start the service. 9:15 से बाद आप आएंगे, दरवाजे के बाहर ही रहेंगे. We will close the door. That's it. Enough of dishonoring the Lord. दूसरे चर्चेस में चलता होगा, हमारे हम खुदा का अनादर नहीं होने देंगे. So cultivate gratitude in your life. Prioritize relationship. अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, अच्छे लोगों से जो आपको खुदा में आगे बढ़ाएंगे. आत्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए, दुनिया की तरह मत बनिए दिखाने के लिए. द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट. जैसे एक व्यक्ति करता था. सबसे छोटा वाला साम कौन सा है? 117. उसको वही पढ़ना है एवरी संडे, एवरी डे, क्योंकि 2 वर्ष है. पढ़ो ही मत भाई, पढ़ो ही मत. शो रेस्पेक्ट टू गॉड एंड गॉड्स वर्ड. सो एक काम कीजिए, आसान तरीका है. एक जर्नल खरीदिए जो दुकान से जाके, जर्नल खरीदिए दुकान से जाके. बोलिएगा जर्नल चाहिए, जर्नल, JOURNAL. उसमें रोज
ग्रैटिट्यूड लिखिए, आभार लिखिए किसी किसी के लिए जिसके लिए आप सोचते हैं आभार होना है। किसी ने आपको कुछ दिया उसके लिए वापस कीजिए, किसी ने आपको मैसेज भेजा आप रिप्लाई कीजिए। आप खुदा के लिए आभारी हैं, खाना खा रहे हैं, खुदा ने खाना दिया, ज़िंदा रखा, उसके लिए आभार। सांसें चल रही हैं, आभार व्यक्त है, थैंक यू जीसस, आई एम एबल टू ब्रीथ, है ना। आप नौकरी आप जा रहे हैं, आप गए हैं, आभार व्यक्त कीजिए। वापस आए हैं, आभार व्यक्त कीजिए। दोपहर में आपने लंच किया, आभार, राइट इट डाउन, देन यू विल गेट दैट स्पिरिट ऑफ gratitude inside you. Develop this. Very important. Hallelujah. हालेलुया। Align yourself with these things. Engage in church activities. वो मसीह मत रहिए। 9:15 का टाइम है ना, पिछले अगली बार क्या करेंगे, 9:14 पे आएंगे। Don't do that. थोड़ा पहले आइए, थोड़ा काम कराइए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए, कुर्सीज़ पे प्रार्थना कीजिए, सीढ़ियों पे प्रार्थना कीजिए, गेट पे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके आइए, थोड़ा पहले आइए, प्रार्थना कीजिए। खुदा यहाँ पे अद्भुत कार्य होगा, प्रभु लोगों की ज़िंदगियाँ बढ़ेंगी। प्रभु यहाँ से जो प्रचार जाएगा दुनिया के कोने कोने तक जाए, लोग सुधर जाएं। प्रार्थना कीजिए, ये सारी चीज़ें बोलिए। Don't be stingy for God. खुदा के लिए समय के मामले में कंजूस मत बनिए। Consistently do this. So when you focus on these things, you will be able to navigate daily choices with integrity. तो रोज का जो चुनाव आपका होगा वो बिल्कुल सही होगा, और आप जैसे पूरी दुनिया अगर नीचे गिर रही है तो भी आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपने सही वैल्यूज़ पकड़ रखा है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। So in short, I want to tell you, avoid moral decay and decline. इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में नैतिक मूल्यों के पतन को आप रोकिए। जो सड़ाहट है, जो गिरावट है, उसे रोकिए। So focus on humility, आप दीनता पे ध्यान दीजिए, gratitude, धन्यवादी आभारी होने में, which will counter your self conceit. जिसमें आपके जो स्वयं के जो अपने आप में फूलने की बात है वो उसका तोड़ है। वो Have friendship with people who are genuine, who are praising, who are speaking good words, who are not gossiping, slandering, ulti seedhi baatein. Don't have friendship with such people. Surround yourself with such people who have moral values. Their morality is increasing and not declining. और अपनी संगति भी आप ऐसे लोगों का ही चुनाव कीजिए जिनका जो नैतिकता है, जिनकी बढ़ते जा रही है, प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, जो सच्चे लोग हैं, प्रभु की बातें बोलते हैं, जो कि पीठ पीछे बुराई करना, चुगली करना पसंद नहीं करते हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you, Lord. पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। Thank you, Lord. We can see around us and we can see there is so much of decay and decline. And the greatest and the biggest tragedy is that we have become so indifferent. We are not even bothered. It does not shock us anymore. But you forgive us, O Lord, and make us sensitive people, that we will be people of respect and honor, and not part of overall decay and decline in this world, including whether it is moral, whether it is spiritual, whether it is financial, whether it is intellectual, whether it is professional, whether it is personal, or whether it is mental, Lord. In every area, help us, Lord, to maintain a right standard, Lord, a righteous standard. You have made us righteous, and so you want us to live a right kind of life, that our conduct and living will match your word, O Lord. Help us to shine your light in this world. Thank you that you will help each one of us. In Jesus' precious name we pray. Amen. आमेन। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इन बातों का आपने हमें फिर से स्मरण दिलाया प्रभु जी। जब हम चारों ओर देखते हैं, आपने इन बातों को हमको दिखाया है। हम जानते हैं प्रभु जी कि चारों तरफ गिरावट है, सराहट है प्रभु जी इस संसार में प्रभु जी, और उसमें सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि हम उदासीन हो गए, हमको उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह अपने जीवनों के लिए चाहते हैं प्रभु जी। हमको संवेदनशील व्यक्ति बनाए प्रभु जी, जो प्रभु जी जो सम्मान को, जो आदर को, दीनता को प्रभु जी, जो अच्छी बातें उनको बढ़ाने वाले हम बने प्रभु जी। हम चारों तरफ देखते हैं प्रभु
जी आत्मिक जीवन में, नैतिकता में प्रभु जी, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, मानसिक तौर पे प्रभु जी हर एक बातों में गिरावट और पतन दिखाई दे रहा है प्रभु जी। हमको ऐसा बनाए प्रभु जी, जो आपने हमें सामर्थ्य दिए प्रभु जी, आपने हमें धर्मी बनाया है, आपने हमें ज्योति बनाया है प्रभु जी, हम असरदार ज्योति के रूप में प्रभु जी हम यहाँ पे चमकने पाए प्रभु जी। इन सारे समयों में ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं, Amen. आमीन। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा प्रभु की प्रशंसा करते हैं। लेट्स